3.14 page. Concept of accounting standards. सेम पैराग्राफ जी जो मीनिंग में था. अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स जो हमें फॉलो करना है while preparing books of accounts. Accounting standards prescribe the accounting rules and procedures for recognition, measurement, treatment, presentation, and disclosure of accounting transactions and financial statements. They are prescribed to be followed in preparing and presenting the financial statements so that financial statements are based on common rules and principles for better understanding by the users. Objectives of accounting standards. पहला जी, minimize the diverse accounting policies and practices with aim to eliminate them to the extent possible. जिन जिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स में डाइवर्स पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं उन्हें एलिमिनेट करना. प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अंडरस्टैंड करना सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड को और अप्लाइड को. फैसिलिटेटिंग मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ टू और मोर एंटिटीज. एनहांसिंग रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. यूटिलिटी जी जो इटैलिक्स में लिखा हुआ है बस उसे पढ़ लीजिए. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड द नॉर्म्स. देन द सेकेंड वन इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंश्योर यूनिफॉर्मिटी. थर्ड वन इज it creates confidence among the users of accounting information. Fourth one is it helps the auditors in auditing the accounts. Limitations जी, accounting standards are man-made, hence it does not always pass the verification test. Second one, accounting standards are based on business environment and laws of the country, hence they change often to meet the changes in the business environment or laws. अगला पेज हम कर चुके हैं जी, 3.16 पेज. हेडिंग IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. जरूरत क्यों है वो कल हम डिस्कस कर चुके हैं जी. ग्लोबलाइजेशन इंटीग्रेट्स द नेशनल इकोनॉमीज इनटू द इंटरनेशनल इकोनॉमी थ्रू ट्रेड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, कैपिटल फ्लो एटसेट्रा. In this age of globalization and technology, enterprises are carrying on businesses worldwide. We also understand that business language is accounting. Thus, business enterprises globally should be preparing financial statements following common basis. Therefore, there is a need of single set of accounting standards that can unify the accounting practice worldwide. It is difficult to understand and compare the worldwide financial information without a common set of accounting and financial reporting standards. The use of, underline kar lo ji, benefit. The use of a single set of high quality accounting standards would facilitate investment and other economic decisions across borders, increase market efficiency and reduce the cost of capital. इसीलिए पहले डेवलप किए गए IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो डेवलप किए थे IASC इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने. इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी रिप्लेस हो गई IFRB के साथ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड ने बनाए IFRS विच आर बीइंग विड्रॉन और सुपरसीडेड बाय IFRS. जो अभी आपको बताया जी वही उन्होंने लिखा हुआ है. पहले IASC एस्टैब्लिश हुई 1973 में, जिसे IASB ने रिप्लेस किया 2001 में. जब IASB बना उसने इशू किए IFRS. जब IASB नया नया बना उसने जितने IASC ने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए थे उन्हें यूज किया और बाद में उन्हें रिप्लेस कर दिया. द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड सेटिंग अप IASC एंड लेटर IASB वाज टू डेवलप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स that would be acceptable worldwide to produce and present financial information based on similar accounting standards. Thus, it is the process to improve financial reporting internationally. हाँ जी, आगे क्या लिखा है जल्दी बोलो, पढ़ लो जी आप पहले वाला.
ये होता अकाउंट्स की थियरी पढ़ाने का नतीजा। देखो कितनी स्ट्रेंथ आई है, सफोकेशन हो रही है, इतनी भीड़ है, एक एक डेस्क पे 5-5 बैठे हैं, फिर यही बालक कहते हैं थियरी में नंबर नहीं आए। थियरी में तो नींद ही आती है ना, नंबर कहां से आते हैं। हो गया जी पहले में बस यही बोला जा रहा है जी भी आप स्टैंडर्ड्स बनाइए। सेकंड में बोला जा रहा है टू प्रमोट द यूज एंड रिगरस एप्लीकेशन ऑफ दो स्टैंडर्ड्स। तीसरा, इन फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव्स एसोसिएटेड विद वन एंड सेकंड, टू टेक अकाउंट ऑफ एज अप्रोप्रिएट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द स्पेशल नीड्स ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज एंड एमर्जिंग इकोनॉमीज। नेक्स्ट, टू ब्रिंग अबाउट कन्वर्जेंस, अंडरलाइन करके ऊपर लिख लो, coming together, to bring about convergence, convergence stands for coming together of national accounting standards and international financial reporting standards to high quality solutions। फिर आया जी मीनिंग IFRS का, ये है सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। द स्टैंडर्ड्स इशूड बाय IASB आर बेस्ड ऑन, प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए, sound and clearly stated principles। Therefore, very important one marker आ जाना है जी ऑब्जेक्टिव टाइप में। IFRS कौन से बेस्ड स्टैंडर्ड्स हैं? दो बेसिस होते हैं जी, एक है रूल बेस्ड और एक है प्रिंसिपल बेस्ड। IFRS जो है वो प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। दिस कॉन्ट्रास्ट विद द सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स लाइक, यहां पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उन्होंने लिखा, अगर कल का लेक्चर याद हो, 3 तरीके के स्टैंडर्ड्स हैं अपने। पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है ICAI, दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो इशू करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू कंपनीज एक्ट 2013। तीसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो अगेन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है थ्रू कंपनीज एक्ट 2013। यहां पर ये जो जिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है, ये पहले और दूसरे वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि प्रिंसिपल बेस्ड नहीं है, रूल बेस्ड स्टैंडर्ड्स हैं। जो हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो हमारा जवाब है IFRS या हमारे खुद के IFRS जो हैं वो आपके प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड्स ही हैं। आज के चैप्टर में आगे जाएंगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल बेस्ड होते हैं तो क्या मतलब है और प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं तो क्या मतलब है। चलिए, which contain significantly more application guidance. These standards are often referred to as rule based accounting standards। अब ये जो आगे की कहानी है ये आपको 1 मार्कर ये देगी कि IFRS में आता क्या है। 4 चीजें आती हैं, पहले इनकी हिस्ट्री पढ़ लो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय पहले IASC, और IASC की कमेटी का नाम है SIC, स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। ध्यान से पढ़िए जी, IASC ने कितने स्टैंडर्ड इशू किए थे? लिखा हुआ है, पढ़ो, 41, जिन्हें बोला जाता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और एक फ्रेमवर्क बनाया था प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जिसमें से 12 को सस्पेंड कर दिया और लार्ज नंबर ऑफ देम को रिवाइज कर दिया। SIC was the interpretive body of IASC। The interpretation of international accounting standards issued by the SIC are described as SIC 1, SIC 2, etc। अब IASC 1973 में बना था और IFRB उसको रिप्लेस कर गया 2001 में। अब ध्यान दीजिए जी, IASB has adopted all outstanding IAS and SIC issued by IASC as its own standards। Those IAS and SIC continue to be enforced to the extent they are not amended or withdrawn by IASB। जो तो विड्रॉ कर लिए या अमेंड नहीं किए वो अभी भी चल रहे हैं, जो विड्रॉ हो गए वो नहीं चल रहे जी। न्यू स्टैंडर्ड्स जो IASB इशू करता है उसे IFRS बोलते हैं। जो न्यू इंटरप्रिटेशन इशू की जाती हैं बाय द IFRIC आर नोन एज IFRIC इंटरप्रिटेशंस। IASC की इंटरप्रेटिव बॉडी का नाम था SIC, IASC, उसके बाद बना IASB। इसकी जो इंटरप्रेटिव बॉडी थी उसका नाम था IFRIC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। और
इनको एसआईसी इंटरप्रिटेशन बोला जाता है, इनको आईएफआरआईसी इंटरप्रिटेशन बोला जाता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके काम का है, when referring collectively to IFRS the term includes 4 things। उन 4 चीजों में वो 4 चीजें हैं जी आपकी, ये तो आपकी बॉडी है जो बनाती है। एक ये है, एक ये है और एक ये है। IFRS स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल, पहले क्या थे? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अब क्या आ गए? अब पहले एसआईसी चलती थी, अब चलता है आईएफआरआईएस। इन चारों को कलेक्टिवली बोलते हैं आईएफआरएस। चेक कर लो लास्ट लाइन। नेक्स्ट जी, हेडिंग दो जी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स अगर फॉलो कर रहे हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आएगा? हम क्या क्या बनाते हैं याद है? पहले दिन कर लिया था हमने। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये बनाते हैं हम फॉलो करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय आईसीएआई या इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात नहीं कर रहा मैं। तो ये जो आईएफआरएस वाले हैं ये क्या क्या बनाते हैं? बोलो जी। पहला सुना नहीं जी? हम बनाते हैं इसकी जगह बैलेंस शीट। सेकंड, हम बनाते हैं इसकी जगह ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगला, हमारी कैपिटल में क्या क्या चेंज आ रहा है, ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल में क्या फर्क पड़ रहा है, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। नेक्स्ट, हम भी बनाते हैं कैश फ्लो। नेक्स्ट, हम भी बनाते हैं जी ये नोट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। चलिए, India had 2 options, either to adopt IFRS as they are or converge the Indian accounting standards in line with IFRS. It decided to converge its existing accounting standards with IFRS. The converged accounting standards titled, क्या लिखा जी? Indian accounting standards have been issued and notified. हाँ जी, heading please. India, instead of adopting IFRS, decided to prepare its own accounting standards equivalent to IFRS. Thus, Indian accounting standards can be said to be converged accounting standards of IFRS. These accounting standards are known as Indian accounting standards. Indian accounting standards are notified under Companies Act 2013 and are applicable to the companies. हम कल पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ लो। अगर आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में क्या होगी, आपकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा होगी, देयर होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर कंपनीज। अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है या आपकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है या 250 करोड़ है, तो आपके नीचे वाली कंपनीज, चाहे वो एसोसिएट हो, चाहे वो आपकी सब्सिडरी हो, जॉइंट वेंचर हो या होल्डिंग कंपनीज हो। इसके अलावा थर्ड पॉइंट के नीचे पढ़िए क्या लिखा है? बिसाइड्स दी अबव कंपनीज, अदर कंपनीज में अडॉप्ट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स voluntarily. Objective behind Indian accounting standard is to prepare financial statements of a company on the lines of internationally accepted accounting principles and practices and complying with the country's business environment and laws. हाँ जी, प्लीज हेडिंग पढ़िए अगली। इसमें आईएफआरएस आया, हमारे 3 स्टैंडर्ड से। बोलिए, पहला कौन इशू करता था? आईसीएआई, उसकी बात नहीं कर रहे। दूसरा कौन इशू करता? कंपनीज एक्ट। तीसरा भी कौन इशू करता? तीसरा लगता है इंटरनेशनल वालों पे, दूसरा लगता है नेशनल वालों पे, जो लिस्टेड नहीं है, जो 250 करोड़ की नेटवर्थ से कम है। बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में ये है जनाब कि जो ये हैं रूल बेस्ड और ये हैं प्रिंसिपल बेस्ड। रूल क्या होता है जी? कानून बोलेगा करना है तो करना है, बिकॉज इफ यू लिव एट अ सर्टन प्लेस यू हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ दैट वेरी लैंड, दैट वेरी कंट्री। तो ये जो है वो रूल बेस्ड है, जैसे बता दिया जाएगा वैसे करेंगे। ये कहते हैं भाई अकाउंटिंग का प्रिंसिपल लगाओ। चैप्टर का नाम थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। 14 क्या पढ़े हैं हमने?
अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आओ जी, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑन विच इज अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3, आप पढ़ेंगे 12वीं क्लास में जाके, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इट मीन्स अ बैलेंस शीट आइटम शुड बी डिपिक्टेड अंडर द प्रिस्क्राइब्ड हेड। In the contrast to this, Indian accounting standard does not prescribe any form of the balance sheet. They prescribe that items may be shown in the balance sheet in accordance with the principle associated with it. For example, भाई तुम्हें शेयर मालूम है? शेयर क्या होता है मालूम है? बिजनेस स्टडीज में पढ़ चुके हो कि नहीं? कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ चुके हो? फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर आया होगा, जिसमें कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जॉइंट स्टॉक कंपनी, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा है। उसमें कंपनी इशू करती है शेयर, शेयर दो तरीके के पढ़े होंगे, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो जब आप 12वीं क्लास में जाएंगे और आप बैलेंस शीट बनाएंगे, वहां पर शेयर कैपिटल आता है। क्या आता है? उसका बनता है नोट्स टू अकाउंट्स। उसमें आता है इक्विटी शेयर कैपिटल और उसमें आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उधार मालूम है आपको? उधार, लोन, लोन मालूम है? लोन बोलो, लोन, नॉर्मल लोन। धंधा शुरू करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। अगर ओनर दे दे तो, और अगर बाहर वालों से लेना पड़े तो लायबिलिटी का नाम लोन। क्या फीचर होता है लोन का? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फंड प्रोवाइड। क्या करना पड़ता है? लोन, लोन पे क्या देना पड़ता है? हाँ के ना? जल्दी बोलो। ये क्या है? क्या लिखा है? 10%। क्या लिखा है? 10%। क्या मतलब है इस 10% का? बैंक से लोन लिया है जी 10 लाख का, कितने परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा? आपने 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू की है 20 लाख की, मतलब आपको 20 लाख रुपया किसने दिया? पब्लिक ने। किसने दिया? पब्लिक ने। और कंपनी ने उन्हें क्या दिए? प्रेफरेंस शेयर। उनके साथ क्या लिखा है? मतलब अगर 20 लाख रुपए के कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है तो वो 20 लाख रुपए जनता से ले रही है और उस 20 लाख को धंधे में लगा रही है और धंधे में लगाकर पैसा कमा रही है। जितना मर्जी पैसा कमाए, उसे साल के एंड में या कई बार साल में 2 बार 6-6 महीने के बाद अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या देना है? 10%। इसे बोलते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या बोलते हैं? 20 लाख का 10%, 2 लाख। आधे साल का 1 लाख। क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 2 लाख रुपए से ज्यादा मिलेगा साल में कि 2 लाख ही मिलेगा? सुना नहीं जी, 2 लाख ही मिलेगा। बैंक से लोन लिया है, 10% ही इंटरेस्ट दोगे कि कम दोगे कि ज्यादा दोगे? 10%। लोन वापस करोगे? बोलो। अब आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हो नॉट मोर देन 20 ईयर्स। मतलब हद से ज्यादा आप प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे और आपको 20 साल में उनका पैसा वापस करना पड़ेगा। मींस आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी क्या करना पड़ेगा? रीपे। अब आपको इन दोनों के फीचर्स सेम नहीं लग रहे? वो भी रीपे करना पड़ेगा, ये भी रीपे करना पड़ेगा, उस पर भी फिक्स्ड इंटरेस्ट है, इस पे भी फिक्स्ड इंटरेस्ट है। तो जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या है? ये कहता है जी इसे क्या मानो? शेयर कैपिटल। क्या मानो? क्योंकि शेयर कैपिटल क्यों मानो? क्योंकि हमारा शेड्यूल 3 है कंपनीज एक्ट 2013। इसमें पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो जो पार्ट 1 है ना, उसमें एक फॉर्मेट बना हुआ है। क्या बना हुआ है? आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ फॉर्मेट। डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। सिमिलरली बैलेंस शीट बनाने का एक फॉर्मेट बना हुआ है कि आपको यही चीजें बैलेंस शीट के अंदर डालनी है। तो हमें यहां पर
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को शेयर कैपिटल में दिखाना पड़ता है बिकॉज वी हैव टू फॉलो शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। दिस इज अ लॉ, दिस इज अ रूल। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन से हैं? रूल बेस्ड। अगर आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो या आईएफआरएस फॉलो कर रहे हो, वो कहता है ना भाई ना, क्या पकड़ के चलो? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के हिसाब से प्रेफरेंस शेयर और लोन दोनों एक ही चीज है। दोनों में कंपनी पैसा जनता से ले रही है या बाहर से ले रही है, दोनों में पैसा वापस करना पड़ेगा, दोनों में आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसलिए अगर आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हो, देन आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को शेयर कैपिटल में शो नहीं करोगे, देन आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को शो करोगे एज अ लोन। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन रूल बेस्ड प्रिंसिपल एंड रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आ जाओ जी। फॉर एग्जाम्पल 3.19 पेज, redeemable preference shares are shown under the main head share capital under schedule 3 of the companies act 2013, but it is shown as a loan because it carries a fixed rate of dividend and also must be redeemed in accordance with the terms of the issue, but not later than not 20 but 25 years from the date of issue. Indian accounting standard requires that since it is in the nature of a loan, it should be depicted under the main head loans. तो ये एक बेसिक डिफरेंस है कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल बेस्ड हैं और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिंसिपल बेस्ड हैं। दूसरा जी पढ़ो, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्वॉल्व्स व्हाइल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन। हाँ भाई, हिस्टोरिकल कॉस्ट तो पढ़ा था, जल्दी बोलिए क्या कहता है जी हिस्टोरिकल कॉस्ट? हिस्टोरिकल कॉस्ट कहता है आप अपने फिक्स्ड एसेट्स को किस पे शो करोगे और फिर सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग कॉस्ट पे ही होगी। कॉस्ट में से क्या माइनस करोगे? डेप्रीसिएशन। हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है क्या फॉलो करो? फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट। क्या होती है जी फेयर वैल्यू? आपके पास साल के पहले दिन मशीन है, क्या है? आपने मार्केट में उसकी वैल्यू लगवाई, कितनी आई? 4 लाख। अब इसे मार्केट वैल्यू बोलेंगे। मार्केट वैल्यू का मतलब है ये वो वैल्यू है जिस पे बायर और सेलर दोनों खरीदने और बेचने के लिए क्या कर रहे हैं? एग्री। फिर आपने साल के आखिरी दिन इस मशीन की फिर से वैल्यूएशन डलवाई। इस मशीन की वैल्यू अगर ये होगी तो इसका मतलब है साल के एंड में आपकी मशीन कम नहीं हुई, बढ़ गई। कितने से? 10,000। और अगर ये हुई तो कम हो गई, कितने से? व्हाट इज 50,000? डेप्रीसिएशन। इसे बोलते हैं फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट। एक एसेट आता है, एसेट का नाम है सिक्योरिटीज। क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटीज? शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, सिप और बहुत तरीके की इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, उन्हें खरीदना बेचना, इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं, क्या उनको चाहे इस पे ले लो चाहे इस पे ले लो, योर चॉइस। लेकिन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है जब बात आएगी किनकी? सिक्योरिटीज की, देन यू कांट टेक इट एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, यूल ऑलवेज नीड टू टेक इट एट फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट। आओ जाने जी, ध्यान दो। Unless accounting standard, Indian accounting standard prescribes that assets and liabilities of the company, आगे वर्ड क्या लिखा? अंडरलाइन करो मे बी को। मे बी शोन एट द फेयर वैल्यू। मे बी का मतलब आप कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो फिर फेयर वैल्यू पे नहीं करना चाहते तो किस पे करोगे? हिस्टोरिकल कॉस्ट एज एट द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। बट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ब्रैकेट क्या लिखा जी? शुड बी वैल्यूड एट। Thus, in effect, when the fair value is adopted for fixed assets, depreciation is not charged on the cost of the asset, but it is valued as on, and the difference in opening and closing valuation is debited or credited to profit and loss account. यहां जी आपका 10,000 रुपया P&L में बाय साइड पे जाएगा, यहां पर आपका 50,000 रुपया P&L में टू साइड पे जाएगा। सिद्धम टिक जा।
उसके बाद जी हमारे पास है इट मीन्स एवरी एसेट एंड ऑल्सो लाइबिलिटी will have to be valued or discounted every year to be shown in the balance sheet. Next item, please. Meaning of are a set of accounting standards notified under Companies Act 2013 that converge with international financial reporting standards. Indian accounting standards are based on sound and clearly stated and are therefore Indian accounting standards are set to be, please underline कर लीजिए, Indian accounting standards are principle based accounting standards. This contrasts with the accounting standards that are applicable on companies on which Indian accounting standards are not applicable, which are rule based accounting standards. Underlying assumptions in Indian accounting standards. हाँ भाई, दो assumptions है, फटाफट पढ़ लो, नाम से क्लियर हो जाएगा आपको. पहली, दूसरी, चलिए. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. पहली जी, स्टेटमेंट ऑफ, इसमें कौन कौन आएगा जी? एसेट्स एंड, नेक्स्ट वन जी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. उसके बाद जी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मतलब होता है जी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस. अगला जी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड द नेक्स्ट वन इज नोट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज. एक बार जरा पेज नंबर 3.18 पे टॉप ऑफ द पेज पढ़ना. कौन सी बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं? इन्हीं का जवाब है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. तो दोनों सेम टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं. नेक्स्ट क्या लिखा है जी हेडिंग? रिपीट है जी पिछले पेज का. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्स दैट एवरी कंपनी शैल वैल्यू इट्स एट वेयर एज अदर एसेट्स कैन बी वैल्यूड एट or but whichever of the two methods is adopted shall have to be consistently followed. हाँ जी, what is fair value? पढ़िए. Means the price that would be when an is or paid to transfer in orderly transaction between market participants at the measurement date. Stating differently, it is a price which would be to pay for an and a seller would be. However, for the purpose of Indian accounting standard, in many cases, fair value is estimated, except in case of quoted financial securities जो stock exchanges पे listed होती हैं, for which valuation rules are notified. हाँ जी, applicability of Indian accounting standard कर चुके हैं जी हम. Bottom of the page, Indian accounting standard under the Companies Act 2013. So far, the number of Indian accounting standards issued and notified under the Companies Act 2013 are 40, list of which is given here under. आपका चैप्टर मुक गया जी. कितना आपको आता है वो भी पता चल जाएगा. 3.21 पेज पढ़िए. क्वेश्चन नंबर 1. फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions as per अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 आर गोइंग कंसर्न. बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी. सो बी पार्ट इज द आंसर. ये फंडामेंटल है जी. 11 और भी हैं इसके अलावा, बट द फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions यही हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है 1 कि आपको दिखानी पड़ेंगी. अगर आप इनको इनमें से किसी को भी फॉलो नहीं कर रहे हो, देन यू हैव टू मेंशन व्हिच वन यू आर नॉट फॉलोइंग एंड व्हाट्स द रीजन फॉर नॉट फॉलोइंग देम. नेक्स्ट प्लीज. अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. हाँ जी, ABCD में से बता दिया करो जी बस. सबको क्लियर है जी? सी पार्ट. हाँ जी. क्वेश्चन नंबर 3. हाँ जी 3 सी पार्ट ओके जी. 4th देख लो जी, तुक्का ही ना मारी. चलो हर एक में सी बोली जा रहे हो. क्वेश्चन नंबर 4 जी सी पार्ट. हाँ जी. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 जी बिल्कुल जी ए पार्ट. क्वेश्चन नंबर 6. अब ए चालू हो गए जी आप. क्वेश्चन नंबर 6 पक्का जी. क्वेश्चन नंबर 7 एक्रूअल कॉन्सेप्ट. हाँ जी. 8th one जी अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी. 9th 10th बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. ठीक है. डी पार्ट इज द आंसर. नेक्स्ट 11th सुना नहीं जी. 12th 13th आपने मार्क कर रखे हैं पहले से. चलो बढ़िया. 14th
हाँ, अब क्या हुआ? डी पार्ट 15th 16th 16th 17th जी, बी सी, बी 18th 19th ठीक है। 2 साल की फीस इकट्ठी आ गई, पहले साल वाली फीस को पहले साल का रेवेन्यू मानेंगे, दूसरे साल की फीस को दूसरे साल का। 20th जी, 20th 21st 21st जी, 22nd 22nd। आईएएस और आईएससी दोनों को अडॉप्ट कर लिया था जी आईएएस भी ने। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर asset except securities may be valued under IAS on। दोनों पे कैसे कर लोगे? दोनों पे कैसे कर लोगे? मे बी आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वैसे आपको यही कहता है फेयर वैल्यू पे मेजर करो, लेकिन आप फेयर वैल्यू के अलावा मे बी किस पे जा सकते हो? हिस्टोरिकल कॉस्ट। आओ जी, असर्शन रीजन पढ़ो जी। हाँ जी, पहले का असर्शन ठीक है जी, जल्दी बोलो। हाँ जी, रीजन रीजन जनाब। अरे गेन तो तब तक नहीं कर सकते जब तक बेचेंगे नहीं। बोथ आर इनकरेक्ट, सी पार्ट। नेक्स्ट जी, इज असर्शन ओके? इज रीजन ओके? बी पार्ट इज द आंसर जी। नेक्स्ट, इज असर्शन ओके जी? इज रीजन ओके जी? बोलिए। लेकिन रीजन का असर्शन से कोई लेना देना जी? रीजन में कौन से कॉन्सेप्ट की बात हो रही है? रीजन में एक्रूअल और असर्शन में नेक्स्ट। ठीक है जी, असर्शन असर्शन ठीक है जी। रीजन रीजन फॉल्स है, बिल्कुल ठीक है जी। फिफ्थ, हाँ जी, असर्शन ठीक है जी। फिफ्थ असर्शन ठीक है जी। मैचिंग आ गया जी, मैच्ड। रीजन बी पार्ट इज द आंसर जी। नेक्स्ट, सिक्स्थ पार्ट असर्शन ओके जी। रीजन बी पार्ट इज द आंसर। ट्रांजेक्शन नंबर 7 जी, advance against sale of goods was received, it will be shown as income in the। बिल्कुल जी, इन द ईयर ऑफ सेल ही करोगे। जब गुड्स बेचोगे तो एडवांस फॉर सेल्स डेबिट हो जाएगा। अगर बाकी का पैसा मिल गया कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बाकी का पैसा नहीं मिला डेटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट। ये कब कार्रवाई करोगे? जब बेचोगे। ईयर ऑफ क्या लिखा है? रिसीट ऑफ एडवांस के ईयर ऑफ सेल? ईयर ऑफ सेल। असर्शन इज करेक्ट। रीजन चेक करो जी। बेटा सेल की एंट्री कब करोगे बताओ? हाँ, तो वो कौन सा साल होगा? ईयर ऑफ रिसीट के ईयर ऑफ सेल। तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज हुआ? रीजन ठीक है जी। रीजन गलत जवाब। अक्रूवल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन द ईयर दे आर रिसीव्ड, के इन द ईयर इन विच ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इनटू। सो रीजन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। असर्शन इज ओके जी। रीजन चेक कर लो जी। रीजन सही है और असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है। नेक्स्ट, दोनों चीजें ठीक है जी।
नेक्स्ट 10th, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है जी, लेकिन आपस में कोई लेना देना नहीं है। 11th, बोलो जी, सुना नहीं जी, दोनों चीजें गलत हैं जी। चलिए 12th, असर्शन ठीक है जी, रीजन गलत। 13th, दोनों ही गलत जी। 14th, बी पार्ट जी, दोनों चीजें ठीक हैं। 15th, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। 16th, हाँ जी। नेक्स्ट, सी पार्ट जी। 18th, बी पार्ट ठीक है जी। 19th, असर्शन करेक्ट है जी, रीजन इनकरेक्ट। 20th, ठीक है जी, ये पार्ट। आइए जी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। पहला, हाँ जी, ABCD डी। नेक्स्ट, सी पार्ट जी। क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल ठीक है जी। 4th, ऑल ऑफ दीज। 5th, ए पार्ट। हाँ भाई, एक्रूअल का बताओ, मैच द कॉलम। एक्रूअल का 1 2 3 4 में से 3rd, गोइंग कंसर्न। मैचिंग, कॉस्ट। सी पार्ट इज द कोड जी, जो आपके इन मैच द कॉलम्स को बताता है। नेक्स्ट, पढ़िए जी अब पूरे का पूरा। हाँ जी, आंसर। पहली लाइन पढ़ लीजिए आपने केस स्टडी की। कितने का प्रॉफिट है आफ्टर कंसिडरिंग दीज 4 आइटम्स। हाँ जी, पहली तो कह रहा है जी एसेट को कॉस्ट माना है ना। कॉस्ट ऑफ एन एसेट ऑफ ₹10,000 परचेज ऑन द लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इज अकाउंटेड एज एन 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट निकालते वक्त आपने 10,000 रुपए के कॉस्ट को, एसेट को खर्चा माना है। इससे आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है कि कम हुआ है? सुना नहीं जी। तो फिर आपको अपने प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा, कितने से? 10,000 से। पहले पार्ट का इंपैक्ट। आगे जी,
विजय क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? अगर उसकी कार बिकती है, उसने प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर लिया जी, उसने अपने प्रॉफिट को बढ़ा रखा है कितने से? 10,000 से। तो 10,000 से आपके प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? कम। सैलरी जी 2,000 रुपए की पेबल है, जनरल एंट्री देना जरा आउटस्टैंडिंग सैलरी की। सैलरी अकाउंट डेबिट। इन्होंने सैलरी को खर्चा ही नहीं माना जी, तो इन्हें सैलरी को खर्चा मानना चाहिए। 2,000 रुपए से क्या करना पड़ेगा? माइनस। नेक्स्ट, विजय परचेज एन एसेट कितने का? उसने किताबों में कितने का लिख रखा है? एसेट लिख रखा है जी। पी एंड एल पे कोई फर्क नहीं पड़ा जी इसका। करो प्लस माइनस। आंसर 98,000। नेक्स्ट, विच मेजरमेंट बेस शुड बी फॉलोड इन स्टेटमेंट 4? बोलो जी, शुड बी फॉलोड। उसने क्या फॉलो कर रखा है? फेयर वैल्यू। हमने क्या फॉलो करना है? नेक्स्ट, विच प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड इन स्टेटमेंट 2? फॉलो किया नहीं, दे हैव एंटिसिपेटेड द प्रॉफिट्स। फोर्थ वन जी, विच शुड बी फॉलोड इन स्टेटमेंट 3? एक्रूअल। कहानी समझ आ गई जी? सो दिस इज हाउ योर चैप्टर नंबर 3 पैन्स आउट दी। इसमें 3 स्टेजेस थी, तीनों की तीनों स्टेजेस जो है वो हमने कर ली। भैया एक बार वीडियो बंद करके चलाना जी।